Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to discuss tribal movements in contemporary India, जनजातीय आंदोलन समसामयिक भारत में। जनजातीय आंदोलन भारत में बहुत पहले से शुरू हो चुका था। एक्चुअली ये कॉलोनियल पीरियड से ही चला आ रहा है और आफ्टर कॉलोनियल पीरियड it went to post-colonial era and then post-global era. So when we are trying to understand this whole movement, ट्राइबल मूवमेंट, या कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज भी कर जाते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स पे आता है और कभी वो ट्राइबल मूवमेंट्स लिख देते हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स पे जब आता है तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स लिख देते हैं। तो ये कंफ्यूज ना हो क्योंकि दोनों ही अलग अलग आंदोलन हैं। अगर हम जनजातीय आंदोलन की बात करें तो वो अलग है और पर्यावरणीय आंदोलन की बात करें तो वो भी अलग है। बट द थिंग इज़ कि उन दोनों में एक कनेक्टिविटी ये है कि हम ट्राइबल्स मूवमेंट को इन आइसोलेशन नहीं देख सकते पर्यावरण से, क्योंकि दोनों का जो मूवमेंट का जो आधार है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। That is the reason that we find in many of the environmental movements, the tribals, they have participated actively, women also. So we need to understand the tribal movements not in isolation of the environmental movement, but we need to connect both the movements together. Okay, I hope this is clear to you that when you are asked in your exams, for example, if you are asked environmental movements, you write on environmental movements and not on tribal movements. Okay, and if you are asked on tribal movements, you are supposed to write on tribal movements and not on environmental movements. And in this paper, development process and social movements in contemporary India, there are many books which does not talk about tribal movements. So it is very important that you should have the understanding of that particular movement as well as the content, the important issues and the important ideas which you need to incorporate in your answers. Okay, and so first of all we need to understand who are tribals. ठीक है, ये जनजातीय कौन है और हम किन्हें कहते हैं जनजाति। So indigenous and tribal peoples is a common denominator for more than 370 million people. So 370 million people के लिए एक common ये एक यूनिफॉर्म नेम है जो यूज़ किया जाता है बहुत किताबों में, आर्टिकल्स में, स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, and it is found in more than 70 countries worldwide. Okay, indigenous and tribal peoples have their own cultures, languages, customs and institutions which distinguish them from other parts of the societies in which they find themselves. और कई बार इनको आदिवासी के नाम से भी हम जानते हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं इनके। तो वो जो जनजातियाँ हैं उनके डिफरेंट नाम से हम जानते हैं। झारखंड में बहुत सारे ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं, उड़ीसा में डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, छत्तीसगढ़ में डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं एंड दे हैव डिफरेंट नेम्स. So what is common in them? So this is the idea that they have their own cultures, they have their own languages, they have their own customs and institutions, and they want those institutions to be protected and safeguarded. Okay, then the second point is there is no universal definition of indigenous and tribal people. ठीक है, एक डेफिनेशन नहीं है और कि हम इसी तरह से बोल सकते हैं उनको, बट ILO यूनाइटेड नेशन का ILO जो कन्वेंशन है 169, इट ट्राइज टू define that. Okay, so if you want to go in details of that convention, you can search and you can see what is how ILO has defined in 169 convention. Then अगर हम संविधान की बात करें, in the constitution article 342 says that the president may, with respect to any state or union territory and where it is a state, after consultation with the governor thereof,
by public notification specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this constitution be deemed to be scheduled tribes in relation to that state और यूनियन टेरिटरी एज द केस में भी। तो ये जो संविधान का हमारा अनुच्छेद 342 है, इसमें प्रेसिडेंट के ऑर्डर से स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अलग अलग तरीके से वो ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन निकालने के बाद ऐड कर सकते हैं किसी कम्युनिटी को। और इसी आर्टिकल 342 क्लॉज 2 में जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो भी बाय लॉ अगर चाहे तो किसी भी कम्युनिटी को या ट्राइब को उसमें से निकाल सकता है, ऐड कर सकता है। ये पार्लियामेंट के पास भी पावर है। तो while we are trying to understand who are tribals, okay, so first of all whenever you are writing an answer on this tribal movements, please remember that you strategize your answers the way I am trying to explain, because that would fetch you more marks. Okay, then now we need to categorize or classify the movements in the different phases in different era. ये आप औपनिवेशिक काल, उत्तर औपनिवेशिक काल या ग्लोबल काल में कर सकते हैं, पर क्योंकि जो ग्लोबल काल है वो उत्तर औपनिवेशिक काल भी है तो ज़रूरी नहीं है कि 3 काल में आप डिफ़ाइन करें, आप 2 काल में भी इसको क्लासिफाई करके समझा सकते हैं। तो पहला जो अगर हम कॉलोनियल इंडिया की बात करें, कॉलोनियल इंडिया में बहुत मूवमेंट्स हुए हैं, 70 से 80 के मूवमेंट्स हुए हैं, पर हमें सारे मूवमेंट्स हम याद नहीं रख सकते। ठीक है, मैंने क्लास में भी बताया है, देयर आर फ्यू very important movements in colonial India which forms the base of our Indian national movement also, and it is a strike against British colonialism. So we need to understand, पहला है तमर revolt 1789 to 1832. Then the second movement is खेरवाड़ movement of संथाल का ये बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें उन्होंने कॉलोनियलिज्म और ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने विद्रोह किया, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज़ हमेशा से देवर एंटी ट्राइबल्स, एंटी लोकल पीपल। तो 1833 का जो ये मूवमेंट था बहुत बहुत बड़ा, बहुत व्यापक मूवमेंट रहा। तीसरा मूवमेंट है संथाल रिवोल्ट ऑफ 1852। संथाल परगाना में जो संथाल रिवोल्ट रहा बहुत इम्पॉर्टेंट था और it helped in mobilizing many local people including the tribals, and it also tried to mobilize other people apart from tribals, जो वहाँ पे लोकल हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको भी एक कोशिश किया मोबिलाइज करने के लिए। ठीक है, एंड देन द अनदर इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इज़ बिरसा मुंडा मूवमेंट 1895 टू 1901। झारखंड का ये बहुत बड़ा आंदोलन रहा, बहुत ही सफल आंदोलन भी रहा, और कई बार बिरसा मुंडा के नाम से भी वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं वहाँ ओपन की गई हैं झारखंड में, एंड इट इज़ वन ऑफ द पाइनियर ऑफ दिस होल ट्राइबल मूवमेंट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 4 मूवमेंट आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में डिफ़ाइन कर दीजिए, समझा दीजिए क्या फ़ायदा रहा इस मूवमेंट का, कैसे मोबिलाइज़ किया, क्या इनके थोड़े वीकनेस है। इफ़ यू वांट टू राइट दैट आल्सो यू कैन राइट। तो पहला तो ट्राइबल मूवमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया। डू नॉट ट्राई टू राइट ऑल द मूवमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हैं, आप इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स क्लासीफाई करिए, उनको समझाइए और एक्सप्लेन कीजिए। देन वी कम टू पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। उत्तर औपनिवेशिक काल में, उत्तर औपनिवेशिक भारत में किस तरह से हम जनजातीय आंदोलन को समझते हैं। तो पहला तो है मूवमेंट ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आउटसाइडर्स, जिसमें हम झारखंड मूवमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इनफैक्ट झारखंड मूवमेंट और सारे मूवमेंट में भी आ जाएगा, क्योंकि आउटसाइडर्स के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट रहा वो, क्योंकि अलग स्टेट की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करता है, पूरा वो एथनिक मूवमेंट रहा है, बहुत ही सब मतलब इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है झारखंड मूवमेंट। तो वो मूवमेंट भी आप इसमें लिख सकते हैं। देन मूवमेंट्स ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, जैसे लाइक दोज ऑफ गोंड्स इन मध्य प्रदेश एंड द महर्स इन आंध्र प्रदेश। तो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन भी बहुत बड़ा कारण रहा है पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में, क्योंकि इकोनॉमी इज़ economy livelihood and survival is very important, and one cannot imagine life without economy. So that is one of the important part of post colonial India tribal movements. Then third one is movements due to separatist tendencies. ठीक है, separatist tendencies जैसे नागा हो गया, मिज़ो हो गया, इन लोगों का अलग स्टेट है, अलग स्टेट के लिए डिमांड्स हैं, तो ये separatist tendencies भी कई बार पोर्ट्रे करता है।
और ये मूवमेंट्स पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, दोनों के जो मूवमेंट्स हैं थोड़ा सा डिफरेंसेस है दोनों में, कल्चर एंड अदर इश्यूज और ऑल्सो आर डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे एक मेट्रियार्कल कल्चर है, यहाँ पेट्रियार्की है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. एंड देन द लास्ट इज डिमांड फॉर न्यू स्टेट लाइक झारखंड, उत्तरांचल एंड छत्तीसगढ़. ये तीनों राज्य अलग अलग बन गए हैं, और जिस मुद्दे की वजह से ये बने हैं वो भी हम जानते हैं. पर उसके बाद भी even after the formation of these three new states, there are many issues that remains unresolved even today, and one of those issues is the tribal issues. Okay, so then अब क्या है, ये मुद्दा क्या है, issues क्या है, ट्राइबल मूवमेंट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट issues हैं, that also we need to understand. So पहला है इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़. सी ब्रिटिश पॉलिसीज़, जैसे मैंने बताया कि इनका बहुत बड़ा असर रहा. ब्रिटिशर्स के कितने सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो हम अगर हम ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी देखते हैं तो हम वही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं. बहुत सारे एक्ट है, पुलिस एक्ट है, इनफैक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ है जो कॉलोनियल समय से चली आ रही है और बदले नहीं हैं. तो कॉलोनियल इंडिया में तो इतने ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन और एक्सक्लूशन किया ही. अब पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में भी वही चीज़ें जो है कंटिन्यू की जा रही हैं. तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं, के.एस. सिंह हो गए, मायरन वीनर हैं, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थे they are still continued in the post colonial India, and it is a part of the independent state policies also. So अब दूसरा हम अगर मुद्दा देखें तो वो फॉरेस्ट एंड लैंड एलिनिएशन का है. ठीक है, ये जो अलगाववाद है या हम कह सकते हैं एलिनिएशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसकी वजह से मूवमेंट्स हो रहे हैं, फॉरेस्ट एंड लैंड एलिनिएशन. थर्ड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मोर प्रेफरेंस टू आउटसाइडर्स, दीगूज, बाहर के लोगों को मौका देना जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, रिजर्वेशंस और अदर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, कल्चरल एलिनिएशन तो होता ही है उससे, और वैसे भी जो वहाँ के लोग हैं वो खुद अपने आप को एलिनिएट पाते हैं. तो ये बहुत बड़ा एक कारण है. देन फोर्थ रीज़न इज़ कल्चरल सबमर्जेंस. मैंने कल्चरल आइडेंटिटी की बात की कि उनका खुद का कल्चर से उन्हें लगता है जैसे वो बिल्कुल अलग हो गए हैं, और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बाहर का कल्चर कहीं उनको हेजमोनाइज ना करे और उनको डोमिनेट ना करे. फिर उनकी खुद की आइडेंटिटी जो उन्होंने बरसों से सेव करके रखी थी, संजो के रखी थी, और उसी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहते हैं वो, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो उनका लैंड है, उनकी ज़मीन है, उनका फॉरेस्ट है, उनके अपनी जो लोग हैं, कम्युनिटी है जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ है. अगर उनसे उन्हें हटाते हैं तो इट लीड्स टू लॉट ऑफ टर्मोइल. फिफ्थ पॉइंट है रीजनल डिस्पैरिटीज़. एक ही राज्य में अलग अलग जो हैं कोने हैं, सेक्शंस हैं, जिसमें एक राज्य के कुछ सेक्शंस, कुछ एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो झारखंड का पार्ट था, बिहार था, जिसमें से नॉर्थ जो एरिया था, नॉर्थ बिहार, वो काफ़ी डेवलप हो गया. साउथ बिहार, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेटो, इट रिमेन अंडर डेवलप्ड. तो बहुत सारे स्टेट्स के ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कुछ एरियाज़ तो काफ़ी डेवलप हो गए हैं, कुछ एरियाज़ अंडर डेवलप्ड हो गए हैं. तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी विदिन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑल्सो लीड्स टू such type of secessionist movement, such types of extremist movements. नक्सल गतिविधियों का भी बहुत बड़ा कारण रहा है क्षेत्रीय जो असंतुलन है. Then sixth point is displacement. Displacement is a very important issue in post-global period also, due to developmental projects and the neoliberal agenda of the state. अब एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो पर्यावरणीय आंदोलन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है. पॉस्को प्रोजेक्ट देख लो आप, छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उड़ीसा में जो हो रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम पे हो रहे हैं. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और ये इशू बहुत बड़ा इशू है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का. फिर सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ फॉरेस्ट राइट्स एंड एक्सेस टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस.
अब हम आज के समय में जब आप योर लॉज योर राइट्स भी पढ़ते हैं और भी कोई बहुत सारे पेपर्स हैं, इन्वायरमेंट स्टडीज़ भी पढ़ते हैं, तो उसमें FRA पढ़ते होंगे आप, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को कम करने की बात करता है, बहुत सारे राइट्स की रिकग्निशन की बात करता है, और नॉट ओनली ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी बट अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑल्सो। तो ये जो फॉरेस्ट राइट्स है इसके लिए भी बहुत सारे आंदोलन हुए, और आज जो ये अधिकार मिला FRA के संदर्भ में, जो अधिकार मिला, ये इन्हीं ट्राइबल मूवमेंट्स का रिज़ल्ट था जो ये अधिकार मिला। तो ये फॉरेस्ट राइट्स एक्सेस करने के लिए, मैनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेस करने के लिए भी आंदोलन निरंतर चले आ रहे हैं। देन लास्ट वन इज स्टेट पॉलिसीज़ नॉट बीइंग फ्रेंडली फॉर दीज कम्युनिटीज़। अब कई बार चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, लेफ़्ट की आए, या कोई और अदर पॉलिटिकल पार्टी की आए, अगर हम झारखंड में देखते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की आई, फिर किसी और सरकार पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आ रही है, पर इनका कहना है, इन जो समूहों का कहना है कि इनके लिए जो सरकार है बहुत हद तक जो है पॉजिटिव आउटकम लेके नहीं आती, और ये कई बार जो है उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि दो स्टेट आर making many policies, inclusive policies also state is trying, but many times they are not able to convince, okay, and टेक इन टू कॉन्फिडेंस, और कंसेंशुअल जो डायलॉग है वो मुझे लगता है कई बार मिसिंग हो रही है इन कम्युनिटीज़ की और राज्य के साथ। तो ये जो ताना बाना है ये बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिटीज़ भी अपनी तरफ से स्टेट के सामने बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि राज्य अब अगर चेंज होगी या सरकार नहीं आएगी तो हमारे लिए बहुत काम करेगी और बहुत नई पॉलिसीज़ लेके आएंगी जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्टेट आए वो उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम करे, कंसेंशुअल डायलॉग करे, डेलिब्रेशंस करे, डिस्कशन करे पॉलिसीज़ बनाने से पहले कि क्या उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। EI भी निकालना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से हम जो उनके मुद्दे हैं उनमें से ही समाधान निकालें कि जो मुद्दों की वजह से वो मूवमेंट्स हो रहे हैं, अगर हम उन मुद्दों पे काम करें, उन इश्यूज़ पे काम करें, जैसा कि न्यू सोशल मूवमेंट्स कहता है, उसका आधार कहता है, तो बहुत हद तक हम ये आंदोलन के जो इश्यूज़ हैं उसको हम रिज़ॉल्व करने में कामयाब होंगे, और प्रोटेस्ट और इस तरह के जो डायलॉग और जो मूवमेंट्स चले आ रहे हैं उनको हम एड्रेस कर पाएंगे इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। So I hope students we had good understanding about what are tribal movements, who are tribals, how we need to categorize the tribal movements in different phases, and then we also need to understand the issues which are there in any tribal movement, and then we also need to understand that how we can what are the process suggestions that can be made to tackle their issues. Okay, so if you have any doubts regarding our today's discussion, our today's topic, so please let me know, mail me or put a comment in our comment section. And students, please like the video, subscribe my channel, as well as share with your friends if you like my program. And thank you. God bless you.